Good morning, my dear student. Today we will read your class 12th history chapter Mahatma Gandhi and the nationalist movement, civil disobedience and beyond. My dear student, this is very interesting chapter because in this chapter we will read about that the Gandhian movement in India. My dear student, if you remember my previous class where I have already discussed with you that if you want to understand the whole national movement of India, you have to categorize the movement into three parts. First part 1885 to 1905, that was moderate era, and 1906 to 1919, that era is called extremist era, and 1919 to 1947, that era was called Gandhian era. My dear student, even Gandhi era started 1915 to 1947 because here Gandhi reached India and Gandhi taking interest in the Indian political system. But 1915 he was not active member of Congress. He denied to be a active member of Congress. My dear student, these are all I have already informed you in my previous video. Today we will read about about Gandhi and their movements like non-cooperation movement, like Khilafat movement, like civil disobedience movement, and I mean to say that Short March, Quit India movement. These are all what they did, and social reforms also. Dear student, first you have to understand about the biography of Gandhi. Gandhi was born on 2nd October 1869 in Porbandar, Gujarat. His father Mohandas, his father Karamchand Gandhi, who was Diwan of Rajkot, then after Bikaner and Porbandar, and his mother was Putli Bai, was extreme follower of Hinduism. Both father and mother, I mean to say that Gandhian parents, the parents of Gandhi, they believe in the Hindu religion. And my dear, then after in his childhood age, he got married with Kasturba in 1881. He got married in 1881, and then after 1883, that was a time when he went Britain for study of the barrister education. I mean to say that 1883 he went England, and एडमिशन लिया उन्होंने कहां पे? इनर टेम्पल कॉलेज. किसके लिए? बैरिस्टर के एजुकेशन के लिए. फिर गांधी इनर टेम्पल कॉलेज से बैरिस्ट्री पास की 1800. माय डियर स्टूडेंट, वहां पे उन्होंने 3 सालों तक अध्ययन किया और फिर गांधी बैरिस्टर बनके भारत आए, इंडिया रिटर्न हुए. ये तो वो स्टेज था जब गांधी भारत में बैरिस्ट्री पढ़ के वापस आए. 1888, sorry my dear student, date is different. 1888
1888. That was time when they started barrister education. And 1888, 3 years, 1891, when he passed barrister. When he passed barrister education, I mean to say that he became barrister and they returned back India. 1891, and here 1893, they tried to prove himself as a good lawyer, but he was unable. I mean to say that their occupation, their barrister occupation, that was not success in India. It is a very interesting matter with Gandhi that 1893, one person named Dada Abdullah, he called himself that please come South Africa and fight for me to Britishers. I mean to say that कि दादा अब्दुल्ला ने उन्हें अपने यहाँ बुलाया दक्षिण अफ्रीका अपना एक केस लड़ने के लिए, और दक्षिण अफ्रीका दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए 1893 में गांधी वेंट साउथ अफ्रीका in 1893. That date was very important. 1893 date was the milestone in Indian history. I mean to say that if you have remembered the Indian history about particular date 1893 date was the date when Vivekanand reached Washington, Chicago. I mean to say that Vivekanand reached Chicago in where the धर्म सम्मेलन में जब वो गए थे 1893 का टाइम था जब विवेकानंद धर्म सम्मेलन में गए और उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय अध्यात्म, भारतीय वैदिक ज्ञान की जानकारी, इंटेलेक्चुअलिटी को उन्होंने प्रूव किया। 1893 वो टाइम था जब महात्मा गांधी भारत से बाहर साउथ अफ्रीका गए। 1893 वो डेट था जब इन्वेसेंट आई भारत, इसलिए 1893 डेट भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण डेट माना जाता है। तत्पश्चात उसके बाद आफ्टर दैट 7th June 1893, that date we have to what 7th June 1893. This date was very important. Why? Because this date changed Gandhi's life in South Africa. They felt the discrimination of the native peoples. I mean to say that the Indian Africans. What was the incident which happened with them? 7th June 1893. The incident was not good for him. Why? Because he discriminated by the white mans. क्यों? क्योंकि उस समय वो 7th June 1893 में क्लास 1 की टिकट लेके वो दक्षिण अफ्रीका में पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी के साथ जो हुआ वो एक ऐसी घटना थी गांधीयन लाइफ में, गांधी जी के जीवन में जो उनको काफी प्रभावित किया और गांधी ने डिसाइड किया कि अब वो पूरी की पूरी लड़ाई यहाँ के लोगों के लिए जो भारतीय हैं, जो ब्लैक हैं, जिनके खिलाफ इतने सारे डिस्क्रिमिनेटिव एक्शंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं, ये उनके लिए लंबी लड़ाई लड़ेंगे। डे स्टूडेंट घटना थी जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया तक रेलवे के फर्स्ट क्लास वेयर द प्लेस डरबन टू प्रिटोरिया दोनों रेलवे स्टेशन हैं। डरबन से प्रिटोरिया तक वो यात्रा कर रहे थे, तो इस यात्रा क्रम में उनके पास प्रथम श्रेणी की टिकट्स थी। जब वो रास्ते में जब उन्होंने यात्रा शुरू की तो उनके साथ बड़ा ही कटु व्यवहार किया गया। इट मीन्स ऐसा व्यवहार जो किसी भी इंसान के साथ नहीं किया जा सकता, और इसका अनुभव गांधी के जेहन में फंस गया। जब वो डरबन से प्रिटोरिया रेलवे के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में मैरिट्सबर्ग एक जगह था, एक प्लेस का नाम था पीटर मारिसबर्ग। ये मारिसबर्ग जो था प्लेस,
इस प्लेस पे गांधी को फर्स्ट क्लास डिब्बे से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। चलती ट्रेन से गांधी को धक्का देके ट्रेन से निकाल दिया गया। इस घटना ने गांधी के जीवन पे गहरा असर डाला। I mean to say that the incidents which happened 7th June 1893 that was highly I mean to say that क्या किया? The impact of that incident on Gandhi, that was the very strange. He felt that कि अगर मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहा है तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनके साथ क्या होता होगा। गांधी ने डिसाइड किया कि अब वो साउथ अफ्रीका के लोगों के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आई मीन टू से दैट आफ्टर दैट इंसिडेंट गांधी डिसाइडेड दैट ही विल फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स फॉर देयर नेटिव पीपुल्स हु लिव्ड इन साउथ अफ्रीका, फॉर द ब्लैक where rights discriminated by British. I mean to say that here one more thing which is very declared by Mr. Gandhi, that at any rate, at any cost, what I will do for our peoples. यहां पे गांधी का ये सोच कि हम किसी भी तरीके से इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, गांधी ने किया। गांधी साउथ अफ्रीका गए 1893 और फिर इंडिया वो आते हैं 1915। हाउ मेनी इयर्स ही लिव्ड साउथ अफ्रीका? 21 साल तक गांधी गए थे, सिर्फ 3 महीने के लिए साउथ अफ्रीका, लेकिन गांधी साउथ अफ्रीका में रह गए 21 इयर्स, 21 साल, एक लंबा काल का। लेकिन 21 सालों में गांधी ने साउथ अफ्रीका में कई सारे काम किए। गांधी के जो प्रयोग थे, गांधी के जो विपन्स थे, गांधी को एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में बनाने का काम जो था, वो सब उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही एक्चुअली वी कैन यूज द डिफरेंट वर्ड कि हमें गांधी को ट्रेन करने का काम साउथ अफ्रीका ने किया। गांधी को एक अच्छा लीडर बनाने का काम साउथ अफ्रीका ने किया। क्यों? क्योंकि गांधी ने साउथ अफ्रीका में अपने विपन सत्य, अहिंसा, अवस्था, सत्याग्रह का यूज किया। गांधी फर्स्ट टाइम यूज व्हाट? सत्याग्रह। सत्याग्रह इट मीन्स डिमांड फॉर ट्रूथ, सत्याग्रह, that weapon, that is the very important weapon of Mr. Gandhi, and that weapon used by first time in South Africa by Mr. गांधी, M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। उन्होंने उसके बाद कई सारे काम किए। 1896 to 91 में वो भारत भी आए। 1901 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार शामिल हुए और 1901 कलकत्ता अधिवेशन था जहां पे गांधी को बुलाया गया था, लेकिन गांधी वहां पे अपने को नर्वस महसूस किया, वो अपने को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सके। इफ यू विल रीड the Gandhian biography, autobiography which he wrote himself, My Experiment with Truth, he wrote that कि जब मैं मंच पे चढ़ा तो मेरे हाथ में पेपर था, मुझे 3 मिनट का टाइम मिला था और मैं जैसे ही मंच पे चढ़ा मेरे पैर कांपने लगे, मेरी जुबान थरथराने लगी, मैं कुछ बोल पाता, मैंने कुछ वर्ड बोले थे, मैं कुछ बोल पाता, तब तक घंटी बजी, मैं पसीने पसीने हुआ और स्टेज से नीचे उतर आया। तो गांधी की कंडीशंस थी 1901 में, जिसकी अध्यक्षता दिन सभाचक कर रहे थे, कलकत्ता अधिवेशन था, और यहां पे गांधी इस रूप में भी नहीं थे डेवलप कि वो अपनी बातों को प्रॉपरली कह सकें। 98 दक्षिण अफ्रीका में पहली बार उनको इम्प्रिजन किया गया, वहां पे उन्होंने सत्याग्रह और सदाग्रह का नाम लिया। 1910 उन्होंने टालस्टाय बाड़ी की स्थापना की। I mean to say that these are the incidents which changed the life of Mr. Gandhi. Mr. Gandhi ने दक्षिण अफ्रीका में अपने लोगों की लड़ाई के लिए क्या किया? एक नटाल भारतीय कांग्रेस बनाई। नटाल इंडियन कांग्रेस
Natal Indian Congress that was founded by Mr. Gandhi when time was 18, I mean to say that 1900 के आसपास उन्होंने इसको बनाई। 1904 उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म 1904 ट्रांसवाल उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। फिर इस तरह से गांधी ने फोनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिर धीरे धीरे टॉलस्टॉय फार्म 10110 एंड फोनिक्स आश्रम फोनिक्स आश्रम 1904 फोनिक्स आश्रम 1904 उन्होंने स्थापित किया। इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ द नटाल इंडियन कांग्रेस ही it tried to solve the problem of the Indian African peoples or black people and their discriminations. Passive Resistance Association he also formed there 1908 and क्या किया उन्होंने? पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन बनाकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एशियाटिक जो एक्ट पास किया गया था कि कोई भी व्यक्ति वहां पे वीजा नहीं रह सकता। दूसरी चीजें कि शादी के लिए मैरिज एक्ट जो मैरिज थी वहां पे मैरिज के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। हिंदू मैरिज की विधि या भारतीय हिंदू या मुस्लिम जो थे वो शादी करने के लिए जो वो शादी करते थे वो शादी वहां पे मान्य नहीं थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो शादियां ही मान्य थी जो चर्च में होती थी और जिसका रजिस्ट्रेशन किया जाता था। इसलिए उन्होंने मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट भी लगाए थे। मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अगेंस्ट भी गांधी ने एक बड़ा मूवमेंट चलाया। उनके प्रयासों से गांधी ने 1901 उनके प्रयासों से गांधी क्या हुआ, ये एक्ट खत्म हुआ और फिर यहीं से गांधी ने एक नया बदलाव, एक नई चीज गांधी ने लोगों के जहन में अपने लोगों के प्रति क्या किया, एक मैसेज दिया कि कोई भी काम इफ यू हैव फॉर्म्ड योर माइंड एंड इफ योर मोटो इज वेरी क्लियर देन यू कैन डू। गांधी जब डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे तो पहली बार उन्हें हमारे स्वर्ग में जब एक गोरे ने डिब्बे में उनके घुसा और पुलिस की सहायता से उन्हें धक्का देकर नीचे उतार दिया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में किसी भी भारतीय को चाहे वो कितना भी धनी हो, कितना प्रतिष्ठित क्यों न हो, वो गोरों के साथ यात्रा करने की अनुमति साउथ अफ्रीका में नहीं थी। व्हाइट के साथ वो यात्रा फर्स्ट क्लास की श्रेणी में नहीं कर सकता था। इसीलिए गांधी को वहां से चलती ट्रेन से धक्का मार के नीचे उतार दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज भारतीयों के प्रति रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे और यहां पे प्रत्येक भारतीय को रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक था। आई मीन टू से दैट इन साउथ अफ्रीका द ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन डन बाय ब्रिटिशर्स एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट इज वेरी मस्ट फॉर ऑल इंडियन। गांधी हैड सीन दैट सिचुएशंस और फिर क्या क्या है 1906 तक आते आते गांधी ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया। यस, विरोध किया और एक शिष्टमंडल भेजा इंग्लैंड भेजा। उन्होंने इस अधिनियम को समाप्त करवाने में काफी मशक्कत की। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सन 1894 नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और फिर दक्षिण अफ्रीका में लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल यात्रा भी की। उन्होंने अपने सहयोगी और आर्टिसियंस कॉलिन बाख की मदद से टॉलस्टॉय फार्म 1909-1910 में स्थापना की। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता, रस्किन की टॉलस्टॉय, रस्किन तथा रस्किन की टू द लास्ट और टॉलस्टॉय की पुस्तक का काफी अध्ययन किया। श्रीमद् भगवद गीता की तो उन्होंने कई सारे छोटे छोटे टीकाएं भी लिखी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक डरबन में एक अखबार निकाला 1904 में, न्यूज़पेपर। 1904 फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और दक्षिण तथा आई मीन टू से साउथ अफ्रीका में उनके सारे काम से काफी बड़ा परिवर्तन हुआ। गांधी जी ने 1906 में ही साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। तो ये सत्याग्रह मूवमेंट गांधी को प्रूव करने के लिए एक महत्वपूर्ण काम था
गांधी ने इस माध्यम से वहां के लोगों को सत्य का दर्शन कराया। सत्य की मीनिंग्स क्या होती है, पावर ऑफ ट्रूथ, ये चीजें साउथ अफ्रीका के लोगों को महसूस कराई। आई मीन टू से दैट कि यहां तक आपने देखा कि गांधी पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ी। वहां पे उन्होंने उनके लिए वो सारे काम किए जो एक वकील के रूप में, आई मीन टू से दैट कि उनका फेवर करने वाला एक व्यक्ति हो, उसके रूप में जो वो काम कर रहे थे उन्होंने किया। What I am telling here, you have to learn 3 or 4 important points. What? First point, that when he reached South Africa, first when he went England for education of barristery, 1891, 1888, and after 3 years when he passed the degree of barrister, they returned back 1891. And they try to prove himself as a lawyer in India, 1893. But their occupations, but their job, he was not more success in India. They felt that कि कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी उनको क्या मिलती है। दादा अब्दुल्ला called himself that please come where South Africa and fight for us. I mean to say that किसकी कॉल पे, दादा अब्दुल्ला के कॉल पे 1893 वो साउथ अफ्रीका पहुंचते। साउथ अफ्रीका पहुंचने के बाद गांधी के साथ 7 जून 1893, that was the very important date. Again I am informing that why, because when they traveled from Durban to Pretoria, a station St. Marisburg, where he was seated in the class 1 railway bogie, and suddenly a white man entered particular that bogie where Gandhi seated. With the help of police, white men threw out Mr. Gandhi in that cabins. These incidents highly, what I meant to say that कि उनको प्रभावित किया, उनके दिल को झकझोर दिया। Gandhi decided that if the racial discriminations, the rate is very high in South Africa, and at any rate, at any cost, I have to protest it. Then after 1904, Natal Indian Congress was formed by Mr. Gandhi in South Africa. And 1906, first time they used Satyagraha word. Satyagraha, it means the demand for truth, Satya ke liye aaga. And Phoenix Ashram, Palestine Farm, that was also established by Mr. Gandhi. Gandhi protests the Asiatic Registration Act in South Africa. He also opposed the Marriage Act, which was, according to Britishers, according to the Englishman, they felt that the marriage, which was not according to Christian religion, that was invalid. That is a very miserable condition for the Indians, Hindu and Muslims both, who lived in South Africa. Gandhi fight against them. उनके खिलाफ भी गांधी fought for them. उनके लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी. And then after Gandhi succeeded in all. That was the time when Gandhi proved himself as a leader, political leader. A historian told that गांधी को गांधी और महात्मा तो दक्षिण अफ्रीका ने बनाया, भारत में उन्होंने उसको आगे, उसी पर पार्टी को आगे बढ़ाया. This is very important things which I, my dear student, it was very important for Mr. Gandhi that when he reached India in January 1915, he was suggested by his political teacher Gopal Krishna Gokhale that you should visit the whole India and try to understand the problem of the native peoples. And suggestion of their political teacher, Mr. Gandhi visited India. Various places that was observed by him, and various class, the various ethnic groups, women's conditions, children's and poverty, these are all
that was observed by Mr. Gandhi. It was very interesting and strange matter with Gandhi that when he reached in Prayag, he saw that a woman, she had no clothes to cover their whole body. I mean to say that कि महिला को उन्होंने देखा जिसके पास कपड़े नहीं थे अपने शरीर को ढकने के लिए. Gandhi decided, and Gandhi felt first in her mind that is the actual India. ये भारत है, भारत की गरीबी है. उस गरीब महिला के अंदर, उस पुअर वीमेंस के अंदर गांधी ने भारत की मानविकता को महसूस किया. उन चीजों को देखा जो गांधी के लिए गोपाल कृष्ण गोखले सजेस्ट कर रहे थे. फर्स्ट, without the information of your nation, you can't do for that. First, you have to aware of the actual problem of your nation. And that's result, गांधी इन सारी चीजों के बाद एक परिपक्व लीडर के रूप में गांधी सारी व्यवस्थाओं को समझने के बाद देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हुए. बट he was not ready, he was not agreed to be a part of Congress. He clearly told the Congress member that whenever I will not influence the decision of the Congress, I will not member of the, मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं बनूंगा. गांधी ने कहा जब तक मैं कांग्रेस की नीतियों को प्रभावित नहीं कर सकता, जब तक कांग्रेस मेरी नीतियों के द्वारा नहीं चलती, तब तक मैं कांग्रेस का मेंबर, एक्टिव मेंबर नहीं बनूंगा. गांधी इन चीजों के साथ भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं. जैसा कि मैंने पहले कहा कि कांग्रेस सेशन 1901 कलकत्ता तिनसावाचा, गांधी कांग्रेस के 17वें अधिवेशन में भाग ले चुके थे. लेकिन अब गांधी जो 1915 में इंडिया आए, वो गांधी और 1901 के गांधी में काफी फर्क था. आई मीन टू से दैट देयर वाज अ वास्ट डिफरेंस between the Gandhi who participated in Congress session 1901 and that Gandhi who participated in Congress session 1915. In 1901, Gandhi was premature Gandhi, and 1915 he was proved himself in South Africa and what influence क्या किया, लोगों को प्रभावित किया अपनी नीतियों से, अपने उन तौर तरीकों से जिससे लोगों के मन में गांधी के प्रति जिज्ञासा है. इट इज इन द सर्कमस्टेंसेस दैट महात्मा गांधी इमर्ज एज द मास लीडर. एज यू मे नो, गांधी जी एज 46 arrived in India in 1915 from South Africa. Having led Indians in that country in the non-violent march against the racist restrictions, he was already respected leader known internationally. His South African campaign had brought him to contact with the various type of Indians: Hindu, Muslim, Parsi, Christian, Gujarati, Tamil and North Indians and upper class merchants, lawyers and workers. गांधी धीरे धीरे प्रसिद्ध होते गए. गांधी भारत के बहुत सारे लोगों के द्वारा अब जाने जा चुके थे. लोगों के मन में एक सामान्य विश्वास था कि किसी भी तरीके से अगर गांधी इस मूवमेंट को, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को लीड करते हैं तो भारत की आजादी मिलना तय है. These were the faces during that time in the mind of the people. They felt that if Mr. Gandhi lead us, then in future we will be free from the British rule. हम ब्रिटिश रूल से पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएंगे. भारत में हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी. ये जो चीजें थी, ये बातें जो थी, ये कहीं न कहीं गांधी को एक ऐसे लीडर के रूप में आगे की तरफ बढ़ा रही थी, विकसित कर रही थी, जो उस समय की मांग थी, डिमांड थी. आई मीन टू से दैट दीज आर ऑल इंसिडेंट्स व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम दैट वाज इन फेवर ऑफ मिस्टर गांधी. द टाइम 1915 and 16. 1915, in that Congress session, the two
moderate leader Firoz Shah Mehta and Gopal Krishna Gokhale, he was died. The platform was empty, but Bal Gangadhar Tilak and Annie Besant, who were the prominent leader of Congress. Mr. Gandhi have to compete. I mean to say that they उनके लिए कंपटीशन पैदा कर रहे थे गांधी के लिए, इसीलिए गांधी कांग्रेस का मेंबर नहीं बनना चाहते थे। होम रूल लीग चला 1916, लेकिन होम रूल लीग के पहले 1916 में ही कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसने गांधी को एक नए तरीके से लोगों को महसूस करने के लिए विवश किया। आई थिंक पेज नंबर 347, a leader announce himself. How? What I want to say, my dear student, I want to tell you that a leader, I mean to say Mr. Gandhi, which type of leader and what was their thoughts about Indians and the freedom struggle of our nation, he expressed in the Varan, I mean to say that BHO opening ceremony. क्या हुआ वहां पे, किस तरह घटनाएं घटी, we will discuss all in my next video. आज के लिए इतना ही, goodbye and take care.